New phylum is kingdom fungi, right? Let's have. This is multicellular non-photosynthetic eukaryotes. As you know, what is eukaryote? Eukaryotic living organism that possess a definite nucleus along with their definite bounded cell organelles, right? Multicellular, they are even multicellular but does not form any kind of tissue materials like structures, right? Non-photosynthetic because they does not possess any kind of photosynthetic pigments. That's why they can't perform photosynthesis. Multicellular, almost they are multicellular but except of yeast. Yeast is a unicellular living organism, but generally उसकी जो लाइफ स्टेजेस होती है वो मल्टीसेलुलर होती है. बट हम बात करें इसकी तो इससे एक सिंगल सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइक दिस, राइट. हैबिट एंड हैबिटाट, saprophytic, symbiotic and parasitic mode of nutrition they have. Saprophytic as they depends on dead and decaying nutrition nutriting substance, dead and decaying matter पे depend करता है. They shows specific types of mode of digestion that's called extracellular digestion. Extracellular digestion में क्या हो रहा है? Extracellular digestion में generally fungus release some specific types of enzymes to digest them. After the digestion, extracellular मतलब सेल के बाहर, after the digestion they consume digested food inside the body, inside the cell. That's why these also are called decomposition, and such digestion or anaerobic respiration called fermentation. Symbiotic, some of fungi generally used to make a mutual profitable relationship with algae. That relationship called symbiotic, right? Parasitic, दूसरों पे डिपेंड करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स पे, मोस्ट ऑफ प्लांट्स पर उनको डिजीज प्रोवाइड करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं. फंगल स्ट्रक्चर्स, द बॉडी ऑफ फंगस कॉल्ड थैलॉइड बिकॉज दे डज नॉट पोजेस रूट, स्टेम एंड लीव्स. दैट्स व्हाई यूनिसेलुलर लाइक ईस्ट. ईस्ट एक यूनिसेलुलर है, लाइक, एंड मल्टीसेलुलर made up of long tubular structures. The fungal structure or fungal body thalloid made up of long tubular structures that called hyphae. Hyphae, mass of hyphae called mycelium. Generally hyphae septate भी हो सकते हैं, like this. These are the mycelia, right? Mycelia single plural को कहते हैं, mycelium single कहते हैं. तो ये हो गया mycelia. Mycelia यहाँ पर septate है, बीच में सेल्स का क्या हो गया, पार्टीशन हो गया. यूनिन्यूक्लिएटेड हाइफी हो गया, यहाँ पर एक यूपी है उसमें यूनिन्यूक्लिएटेड हो गया, एक सिंगल सिंगल न्यूक्लियस है. यदि हम बात करें दूसरे मल्टीन्यूक्लिएट की, मल्टीन्यूक्लिएट हाइफी हैव अ वेरी मल्टीन्यूक्लिएट न्यूक्लियस व्हिच इज प्रेजेंट इन अ सिंगल हाइफी और माइसीलिया. दैट कंडीशन कॉल्ड सीनोसिटिक कंडीशन, राइट? सीनोसिटिक कंडीशन में नियर बाय पोजीशन के अंदर जितने भी न्यूक्लियसेस होते हैं वो आपस में कहीं भी मिक्स हो सकते हैं, डाइकैरियन बना सकते हैं, ट्राइकैरियन बना सकते हैं. यूनिन्यूक्लिएट हाइफी दैट आल्सो कॉल्ड सेप्टेट. Septate and nearby septate are connected with the pores or a septum that called septal pores. Regular septal pores are separate two different septates. Septa को दो अलग अलग nearby cells को अलग अलग रखता है. But specific types of septal pore can be seen in a Basidiomycetes. Basidiomycetes सबसे डेवलप टाइप की फंगी होती है, इसे क्लब फंगी भी कहते हैं. क्लब फंगी, मोस्ट हाईली डेवलप्ड फंगी, राइट? तो यहाँ पर क्या होता है, एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिससे नियर बाय दो सेल्स हैं, वो उनके न्यूक्लियस आपस में कनेक्ट रहते हैं. Such specific type of septum called dolipore septum, which is very unique feature of Basidiomycetes. Cell wall is present in a fungi, but made up of chitin. Chitin की बनी होती है. This is homocellulose. Basically nature in a homocellulose polysaccharide है ये. इसके अंदर स्पेशली यदि हम देखें केमिकल कंपोजिशन तो एन एसिटिल ग्लूकोजामीन, दैट इज वेरी सॉफ्ट एंड लेदरी टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड. ये बिल्कुल सिमिलर है आर्थ्रोपोडा में. कॉकरोच के ऊपर आपने एक्सोस्केलेटन देखा होगा, उसके अंदर भी चिटिन होता है, बट उसके साथ में क्या होता है, कैल्शियम का सस्पेंडेड पार्टिकल्स. बिकॉज ऑफ एम्बेडिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम, दिस चिटिन
become hard and leathery. So hard and leathery exoskeleton present in arthropoda like cockroach, which is also made up of chitin, but not only a chitin, with also calcium absorbing particles. Right, next, reproduction. Reproduction, we can see here three different mode of reproduction. Asexual means vegetative reproduction, as we know, fission, budding and fermentation, fragmentation. ये जनरली क्या है, ये प्रोसेस हैं जो आपने पढ़े होंगे 10th क्लास के अंदर. फिजन यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, बडिंग यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये ईस्ट में होता है. मोस्ट ऑफ ऑल फंजी विच आर मल्टीसेलुलर शोज फ्रेगमेंटेशन, उनके टुकड़े हो जाते हैं जिन्हें फ्रेगमेंट्स कहते हैं. ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट कैन जनरेट अ न्यू माइसीलिया नेटवर्क. राइट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ स्पोर्स. स्पोर्स की हेल्प से होता है. जू स्पोर्स स्पेशली जितने भी एक्वाटिक टाइप के मॉइस्चर पे उगने वाले फंगीज होते हैं जिन्हें हम लॉवा फंगी कहते हैं, उनमें स्पेसिफिक मोटाइल फ्लैजिलेट स्पोर्स बनते हैं. एग्जांपल फाइकोमाइसेटीज. दीज आर आल्सो कॉल्ड एल्गल फंगी. मॉइस्चर कंडीशन में उगते हैं, वाटर कंडीशन में उगते हैं, एक्वाटिक कंडीशन में होते हैं. सच जू स्पोर्स कैन लोकोमोट, एक जगह से दूसरी जगह जाकर के पानी के थ्रू, वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाकर जमनेट होकर के नया फंगी नेटवर्क क्रिएट करते हैं. सेकेंड, स्पोर एंड जियोस्पोर. अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर ये जो जू स्पोर्स बनते हैं वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में बनते हैं. उस फंगी के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को कहते हैं जू स्पोरेंजिया. जू स्पोरेंजिया. तो जू स्पोरेंजिया स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स वेयर ऑल जू स्पोर्स आर मेड, जहां पर बनते हैं. बेसिकली दे आर प्रोड्यूस्ड देयर. नॉन मोटाइल स्पोर्स कॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर्स लाइक राइजोपस. राइजोपस की जो टर्मिनल सेल्स होती हैं वो मल्टी न्यूक्लियस क्रिएट करती है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस क्रिएट करती है. ईच एंड एवरी न्यूक्लियस बिहेव लाइक अ स्पोर. सच बिहेव्स कॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर्स. एंड जस्ट सेल्स जिसके अंदर ये बनता है उस सेल को कहते हैं स्पोरेंजिया. राइट. और स्पोंजेरिया एक स्टॉक पे डिपेंड करता है जिसको कहते हैं स्पोरेंजियोफोरा. एग्जांपल इज राइजोपस. बट ये ड्राइड और लैंडी कंडीशन में होते हैं. तो लैंड कंडीशन में होने की वजह से ये एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाकर के जर्मिनेट होते हैं. नेक्स्ट, कोनिडिया. ध्यान रखना, यहां पर बनने वाले दोनों स्पोर्स हैं वो सेल के अंदर की साइड बन रहे हैं. तो इन पे और इन पे कैप्सूल लगा के लिख देते हैं. दीज both spores are produced internally. That's why they call endogenous. इनके बनने के लिए बाहर से किसी तरह का कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं हुआ है, जबकि इनमें कोनिडिया में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हुआ है. एक पूरा फिलामेंट, जैसे पूरा फिलामेंट है, यहाँ एक कंट्रैक्शन क्रिएट हो जाए, यहाँ कंट्रैक्शन क्रिएट हो जाए, और उस कंट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे क्या बन गए स्पेसिफिक टाइप स्ट्रक्चर. ईच एंड एवरी structure called conidia. These conidia can free from the parental body. parental body से फ्री होकर के नॉन मोटाइल स्पोर्स में ये एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाकर के जर्मिनेट होने का काम करते हैं. तो इस तरह का ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हुआ है. सच स्पोर्स कॉल्ड एक्सोजीनस. तो zoospores and sporangiospores are used endogenously, and these conidias are produced as exogenously. कॉन्ट्रिक्शन की वजह से क्रिएट होते हैं. थर्ड नंबर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं. राइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन इवेंट्स होते हैं. प्लाज्मोगेमी, जहां पर नियर बाय गैमेट्स आपस में मिल जाते हैं, मिलने के बाद न्यूक्लियस फिर भी सेपरेट रहते हैं सेल में, दैट्स कॉल्ड डायकैरियन. कैरियोगेमी, दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है, जॉइंट एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको होता है सिनकैरियन. जल्दी ही ये सिनकैरियन क्या क्रिएट करता है, मियोसिस, और क्या बनाता है, स्पोर्स बनाता है. इस जॉइंट स्ट्रक्चर को कहते हैं जाइगोस्पोर, जो माइटोसिस मियोसिस करने के बाद बेसिकली जो स्पोर्स बनाता है, उन स्पोर्स को हम तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं. जो माइटोसिस करने के बाद, मियोसिस के बाद 4 स्पोर्स बन जाएंगे, 4 स्पोर में एक माइटोसिस डिवीजन होगा, जिससे एक
एस्कोस्पोर्स बनेंगे। ये एस्कोस्पोर्स है वो एक ही जॉइंट स्ट्रक्चर में पड़े रहेंगे। जैसे ये जाइगोस्पोर है तो ये पूरा जाइगोस्पोर हो गया और इसके अंदर एक न्यूक्लियाई हो गए, एक न्यूक्लियाई का एक कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर बना जिसको कहते हैं कंपोजिट स्ट्रक्चर, दैट कॉल वन एस्कस। एंड दिस इज द चेन ऑफ 8 एस्कोस्पोर्स। 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं इसमें। ये 8 एस्कोस्पोर बनकर ये फिलामेंट पर वन एस्कस बनाते हैं। एग्जाम्पल इज एस्कोमाइसिटीज। ध्यान से देखिए, यहां पर बनने वाले स्पोर्स हैं वो इंटरनली प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर एंडोजीनस। These are endogenous, right? तो प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस होने के बाद बनने वाले जो 4 स्पोर्स हैं वो फॉलो करते हैं माइटोसिस को, और माइटोसिस करने के बाद 8 एस्कोस्पोर्स बन जाते हैं, राइट? उसी तरह से मियोसिस करने वाले स्पोर्स बेसिकली ये भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर टिके रह जाए जिसे कहते हैं बेसिडियोफोर। बेसिडियोफोर और बेसिडियोफोर पर एक चेन बन जाती है, दैट चेन इज कॉल्ड बेसिडियोस्पोर्स। और बेसिडियोस्पोर्स है यूनिक फीचर है किसका? बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को इसलिए कहा जाता है क्लब फंगी। ये जैसे हनुमान जी का गोटा होता है ना, उस तरह नजर आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लब फंगी। और क्लब फंगी में आने वाले सभी फंगीज को जनरली मशरूम कॉमन नेम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो एस्कोस्पोर्स है उनका स्ट्रक्चर बेसिकली इंटरनली है, इंटरनली एंडोजिनसली है। और यहाँ पर जो बनने वाले स्ट्रक्चर है वो कैसा है? एक्सोजिनसली। ये एक्सोजिनसली हो गया। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं दीज बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूसेस। एस्कोमाइसिटीज को इस वजह से सैक फंगाई भी कहते हैं, सैक फंगाई, क्योंकि यहां पर ये एस्कोस्पोरेंजिया, दिस इज कॉल्ड एस्कोस्पोरेंजिया, और एस्कोस्पोरेंजिया एक सैक की तरह बिहेव कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सैक फंगी। और यहां पर सभी के सभी बेसिडियोस्पोर्स एक क्लब के ऊपर सस्पेंडेड रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लब फंगी। मोस्ट ऑफ हायर डेवलप्ड टाइप्स के जितने भी फंगीज होते हैं उनके अंदर 2 नियरबाई जो फिलामेंट्स होते हैं वो एक गैमेट्स की तरह बिहेव करते हैं, उन्हें कहते हैं गैमेंटेजियम। गैमेंटेजियम और गैमेंटिज्म के अंदर एक नेगेटिव और दूसरा प्लस मिलकर के आपस में क्या करते हैं? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का एक्सचेंज करते हैं, जिसमें फीमेल गैमेट एडजस्ट पोजीशन में बना रहता है और एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हाइफी बनने से यहाँ से मेल गैमेट यहाँ फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाता है। बनने वाले इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ऊस्पोर। और ऊस्पोर आगे चल करके क्या करता है? मियोसिस एंड माइटोसिस करने के बाद जो स्पोर्स बनाता है वो स्पोर्स जर्मिनेट होने के बाद क्या बनाएगा? बाद में बनाएगा फंगी। स्पेशली एक चीज नोट करने लायक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाले सारे के सारे स्पोर्स है वो हैप्लॉइड होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन हो रहा है, दैट्स व्हाई दे ऑल आर द स्पोर्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल आर डिप्लॉयड in nature. Kingdom fungi briefly classified under 4 different groups. These are different 4 groups. On the basis of structure of mycelia, they are branched, unbranched, they are unicellular, multicellular, aseptate or septate. Sexual reproduction, have they sexual reproduction or not? By which kind of the spores they shows sexual reproduction? बेसिडियोस्पोर्स हैं, एस्कोस्पोर्स हैं, राइट? तो इस तरह से बेसिस लिए गए। फर्स्ट है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज आर लोगो फंगी एज दे ग्रो इन अ मॉइस्चर, decomposing damp places, and they are aquatic. That's why they call algal fungi. Mycelia aseptate, कोइनोसाइटिक कंडीशन होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर्स, एग्जांपल्स आर म्यूकर, राइजोपस एंड एल्बुगो। सेकंड एस्कोमाइसिटीज, एस्कोस्पोर्स बनते हैं सेक लाइक स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं एस्कोस्पोरेंजिया, दैट्स व्हाई दीज ऑल आर कॉल्ड सैक फंगी। यूनिसेलुलर ईस्ट आता है, मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम आता है। पेनिसिलियम वही है जिसने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटिव टर्म फंगाई से
सबसे पहले एक एंटीबॉडीज बनाई थी, एंटीबायोटिक्स बनाई थी, एंटीबायोटिक्स का नाम था पेनिसिलिन, राइट। माइसीलियम ब्रांच होते हैं, सेप्टेड होते हैं, asexual reproduction by conidiospores in conidia and sexual reproduction by ascospores. During a stressful condition, these ascospores insist in a protecting layer. Such structures called fructing or fruiting bodies. Such phenomenon called fructification bodies. तो फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, एस्कोस्पोर्स हैं वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में कवर हो जाते हैं, इस कवरिंग को कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, और इस तरह से अपने एस्कोस्पोर्स को स्ट्रेस कंडीशन प्रिवेंट करने का काम करते हैं। एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा एंड क्लैविसेप्स आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज। Basidiomycetes, they perform to form basidiospores. These basidiospores are performed in a cell that called Basidiosporangia, और Basidiosporangia क्लब की तरह दिखाई देते हैं। That's why these Basidiomycetes fungi are called club fungi और bracket fungi. Mycelium branch और septate होता है। Examples are Agaricus, Astilogopaccinia, right? Basidiospores स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर है, वो एंसिस्टेशन शो करती है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में कवरिंग क्रिएट करती है, जिसे फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। सच फिनोमेनन कॉल्ड फ्रैक्टिफिकेशन बॉडीज फॉर्म, राइट। तो दोनों के दोनों फ्रैक्टिफिकेशन बॉडीज फॉर्म कर रहे हैं। Deuteromycetes सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड फॉल्स फंगी, दीज आर कॉल्ड फंगी imperfecti, right? Only vegetative reproduction and sexual reproduction we can see here. Asexual by conidiospores, conidia, and vegetative reproduction, as we know, fission, fragmentation, and budding, right? Mycelium septate और branch होता है। Examples are Alternaria, Colectotrichum, and Trichoderma. Here we have completed this fungus kingdom fungus, right? We all have completed this fungus. Now fungus kingdom, next class में नए टॉपिक के साथ आएंगे, होगा kingdom planting।